So आज ना मैं बहुत दिनों बाद I got in touch with one of my sides which I had suppressed it for a long time, and I'm glad it did because जिस जर्नी पे मैं रही हूँ अभी तक उस पे आई हैव वर्कड ऑन एवरी साइड ऑफ माइन, एवरी थिंग दैट नीड्स ग्रोथ, एवरी थिंग दैट नीड्स नरिशिंग. ठीक है, जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी ना वो मैं इस जर्नी में कर रही थी. बट कई कई चीज़ें जो थी वो थोड़ी डोरमेंट थी क्योंकि उनकी अभी ज़रूरत नहीं थी, राइट? लाइक, और मे बी इट वॉज टाइम for other things, to be given higher priority. कुछ भी कह लो, right? ये अपने आप चीजें आती जाती हैं और हम चलते जाते हैं. Like, I don't have any right in that, right? Like what I get to choose and what I don't. So आज one of the sides that I got in touch with was my side which admires myself, right? Like the one which admires myself inside and out, right? Like, अब मैंने अपने इनर पे इतना काम किया है, right? Like, I have done so much inner work for the past few years, and I am so proud of that. I am really, really, really proud of all that work I've done, right? And I want to now, like, slowly, start focusing on my outer appearance as well, right? Like, I have ignored my body, I have ignored my hair. मैंने बहुत चीज़ें like, थोड़ी सी हल्के में ले ली थी कि भैया चलो थोड़ा रेस्ट करो, because my inner ones need me more, a little more than you guys right now. Because जब आप अपने inner वाले को ठीक कर लेते हो ना तो slowly वो external में भी आने लग जाता है, and which is already reflecting. I know it, I've seen it, right? So one of the things that is like that I really admired, which I was talking about, is like, the side which admires my body, right? The one which cherishes my body, whether it be my boobs, whether it be my, ass, or whether it be my skin, anything, right? Like the curves, my stomach, everything and anything, my eyes, like, I am like, I admire it, I love it, I cherish it, right? Came to a realization. I don't know why it's so difficult to talk about, but it's something which should be talked about, right? Like a woman's body, it's such a beautiful, vessel. Like, it's amazing, it's curvy, it has like all those curves and mountains and all that, things to hold on to and love more, whatever, right? Women's body is so beautiful, but हमें ना इतने टाइम से फोर्स किया गया है कि नहीं, अपनी बॉडी कवर रखो, नहीं आप अपनी बॉडी नहीं दिखा सकते, नहीं आपको पूरा कवर्ड रहना है, एंड इफ यू डोंट डू इट देन यू गेट शेम्ड. ठीक है, इफ यू डोंट डू इट देन यू गेट लेबल्ड. ठीक है, एंड तुम्हारे को बातें सुनाई जाएंगी, तुम्हारे को बुली किया जाएगा, तुम्हारे को हरास किया जाएगा, बेसिकली तुम्हारी जीना हराम कर दिया जाएगा. वाई? बिकॉज you love your body, you admire your body, or whatever your reason may be, right? It is your body, right? So you should have the right to show it whenever you want, hide it whenever you want, do whatever you want with your own body. And unfortunately वो हमारे को ना इतनी सेंचुरी से दबा के रखा हुआ है. पॉइंट भी करेंगे the things in you, like if you see a curvy like body like mine, they'll start saying things like chubby है या fat है या whatever come to their mind, whatever, that because I don't fit in the definition of the beauty standards, that's why, right? They'll say all that. Or because I don't appeal to them or whatever, that's why. Or they just want to put me down, then they'll just do whatever they can to like make me feel bad, right? Why? Because I'm a woman who is accepting her body as is, who is loving her body as is, but also making sure that I keep on working hard on improving it every day, just like I worked hard
every single day and I still do to improve my inner self, I do the same with my external body as well, right? Like I love it. Like वो जो body positivity होती है ना, body positivity is basically I love my body in any shape, size or form, any day, any time, any year, any month, whatever. I love my body. Doesn't matter if it's big, if it's small, if it's medium, doesn't matter if it's short, if it's tall, or whatever. You love your body every single day. You cherish your body every single day, just like you cherish your inner self every single day. So that's body positivity, right? Like कि तुम ये नहीं हो कि अपनी बॉडी को गालियां दे रहे हो कि भाई तू ऐसी क्यों है, तू ऐसी क्यों। वो जमाना कर रहा है, जमाना का काम यही है कि वो तुम्हारे को गालियां देता रहता है, ठीक है। बट हमारा काम है कि हमें अपनी बॉडी को प्यार करना है हर स्टेट में, बिकॉज इट इज आवर ओन, राइट? है तो खातिर अपनी है ना, सौतेली तो है नहीं। That's what body positivity is, right? Ki you love it in any state and form, but you love it. That's why you continue to improve it, right? Growing up, I used to wear skirts and all that. Like 90s में when you are growing up and you wear skirts that are above your knees, तो वहाँ तब बहुत बवाल हो जाता था, right? तो मेरे घर पे भी मेरे पापा जब बाहर जाते थे तो बाहर से मेरे लिए कभी शॉर्ट्स वगैरह लेके आते थे, तो मेरी दादी उसको हाइड कर दिया करती थी कि नहीं जी नहीं पहनने एंड ऑल दैट। बट द फनी पार्ट वाज कि मेरी जो बुआ की लड़की है ना, जब वो आती थी ना, तो मेरी जो शॉर्ट्स है ना वो ये छुपा के अपने पास रख लेते थे। और मेरी जो बुआ की लड़की आती थी तो उसको बोलती थी कि तू पहन ले, और जब वो पहनती थी हाँ तेरे तो बड़ी सूट कर दे, तेरे तो बहुत सूट कर दे। तो हमारे मतलब उस टाइम पे ग्रोइंग अप, लाइक इट वाज नॉट इजी वेयरिंग स्कर्ट्स, बट आई डिड, वेयरिंग शॉर्ट्स, बट आई डिड, ठीक है। ऐसा कोई मेरे को वो नहीं, आई वाज ऑलवेज अपनी मर्जी के करने वाली मालिक एंड ऑल दैट। बट काफी टाइम तक ना मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था ड्रेसिंग में एंड ऑल दैट, राइट? काफी टाइम तक मेरी लिमिटेड रही थी क्लोथिंग स्टाइल। तो फिर वो इसीलिए था कि यू ग्रू अप इन इंडिया, वहाँ पे रहता ही है कि डीप नेक नहीं पहनने या कुछ ऑफ शोल्डर नहीं पहनना या कुछ ये सब वो सब, राइट? तो मैंने कहा व्हाई नॉट। सो आई वाज लाइक कि स्लोली आई विल आई स्टार्टेड गिविंग इट अ ट्राई। तो मैं एक एक करके मैंने क्लोथ बाय करने शुरू किए, थोड़ा डीप नेक हुए, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया एंड आई एंजॉयड इट। मेरी वैरायटी तो बढ़ गई, लाइक नाउ आई हैड मोर ऑप्शंस। पहले तो वही जीन्स, वही स्कर्ट, वही टी शर्ट, टॉप, लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, इट वाज लाइक वेरी लिमिटेड है। तो जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, जब मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि भाई ठीक है, इट्स जस्ट क्लोथिंग, इट्स जस्ट आवर बॉडी, राइट? And if you got it, you flaunt it, right, baby? So why not? So I started doing that, and of course, I went crazy. मेरे को बड़ा मजा आता था शॉपिंग करने में। Like उस टाइम पे मैं शीन से शॉप बाय करती थी भाई। हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ पैकेज आ रहा होता था, हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ पैकेज। बट मेरा एक दो बड़े क्लोजेट्स, 1 2 3 4 5 6 सूटकेसेस एंड बॉक्सेस मिला के मेरे पास कपड़े थे। बट वो कपड़े ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव हो या कुछ हो, नहीं। एक तो मिनिमम वही लाइक 15-20 लेस ऐसे ही में ही रहते थे। हार्डली कोई होंगे जो थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, बट आई वुड रिपीट देम लाइक क्रेजी। वो मेरे घर पे भाई, आई वॉज अ होर्डर व्हेन इट केम टू क्लोथिंग। मेरे घर पे कितने सालों तक पड़े रहते थे कपड़े, कितने सालों तक, बिकॉज मेरे को चाहिए होते थे। ओके, आई वुड नीड लॉट ऑफ क्लोथ्स बिकॉज आई हैड अ लाइक अ वेरी बिजी सोशल लाइफ, ठीक है। एक तो अकेले के साथ भी और वैसे भी, लाइक आई हैड लाइक अ वेरी बिजी सोशल लाइफ। और मेरा ये होता था कि मैं कहीं पे भी जाती थी तो आई हैव टू वेयर लाइक समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट माई क्लोथ्स, आई डोंट लाइक रिपीटिंग माई
तो मेरे पास बहुत कपड़े होते थे, तो मैं 5-5, 6-6, 7-7 साल के कपड़े पड़े हुए हैं एंड आई एम रिपीटिंग देम, कभी इधर कभी उधर। और ये भी होता था कि रिपीट ये होता था कि जैसे पिछले हफ्ते एक पार्टी पे पहन गई तो अगले हफ्ते दूसरी पार्टी पे, जहाँ कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं है। अरे आई डिड सो मच ऑफ दैट। तो आई व्हेन आई मूव्ड आउट, तो मैंने काफ़ी अपने क्लोथ्स वगैरह, आई वाज लाइक बाय बाय, नाउ इट्स टाइम टू लेट यू गो। You know, you can't keep holding on to baggage like that in your life. तो what I mean is कि उतनी वैरायटी मेरे पास इसीलिए आ गई क्योंकि मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, राइट? आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग व्हाट लुक्ड गुड ऑन मी। फिर तो ऑनलाइन मेरे को समझ आया था देख के कि भैया अच्छा ये वाली ड्रेस मुझ पे सूट करेगी बिकॉज ऑफ माई बॉडी टाइप, और ये वाली मुझ पे नहीं सूट करेगी एंड ऑल दैट। आई बिकेम एन एक्सपर्ट ऑन ऑनलाइन शॉपिंग। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए मेरे साथ ये ऐसा हुआ कि मेरे को ऑप्शंस और हुई कि मैंने अपने आप को पुश किया, अपनी लिमिट्स को पुश किया, अपनी साथ एक्सपेरिमेंट किया, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया, करेज लाया, ठीक है, कि भाई दुनिया जाए भाड़ में, हमको रहने दो मौज में, राइट, वेला टाइप्स। एंड आई एम नॉट किडिंग, पीपल लुक्ड व्हेन आई एंटर्ड रूम्स लाइक, क्योंकि तुम अगर देसी क्राउड के साथ ज्यादातर रह रहे हो ना, दे डोंट एक्सपेरिमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे डू नॉट लाइक टू एक्सपेरिमेंट, बट दे लाइक टू जज अदर्स हु एक्सपेरिमेंट, एंड आई एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट एंड आई डिड हाउ। तो आई वाज लाइक always talked about for my dresses and all that, the way I dressed and all that, so it's good, I liked it. एंड लाइक आई सेड, कभी भी रिपीट नहीं करती थी मैं कपड़े। मेरा वो बड़ा सही रहता था। So I experimented with that, right? But then there was a phase मेरे पास मेरी लाइफ में जब आया था, and there were a lot of things, like there were a lot of trauma behind why it happened, right? But उस phase में मेरे को लगा कि I love my body. उस phase ने ना, it made me fall in love with my body. What I'm saying कि I created account, ठीक है, तो उस पे आई पोस्टेड, आई यूज टू स्टे बिजी डूइंग दैट एज वेल, लाइक मैं अपने खुद के फोटोग्राफ्स लेती थी, ठीक है, डिफरेंट आउटफिट्स आई वुड गेट एंड डिफरेंट आउटफिट्स आई विल मेक एंड ये वो, तो उस अकाउंट पे मैं इसमें पोस्ट करती थी। बट उस अकाउंट के थ्रू ना मुझे मेरी बॉडी से प्यार हो गया था, लाइक आई लव्ड माई बॉडी, आई स्टार्टेड ट्रूली लविंग माई बॉडी फॉर हाउ इट इज, राइट? because other people are telling you like they वो उनकी बारीक नज़र है, वो जूम इन करके देख लेंगे, वो सब कुछ करके देख लेंगे, उनकी बारीक की नज़र है, वो देख के कहेंगे कि भाई हाँ ये यहाँ पे ये पैर बहुत अच्छे हैं, या यहाँ पे तिल वो है, लाइक दिल फाइंड आउट एनीथिंग, तुम चाहे कुछ भी हाइड करने की कोशिश कर। तो जब वो पॉइंट आउट करते हैं तो देन यू ऑल्सो स्टार्ट नोटिसिंग, राइट? यू ऑल्सो स्टार्ट सीइंग दीज थिंग्स, चाहे वो आर्मपिट हो, राइट? लाइक मेरे को मेरे पैर अच्छे नहीं लगते थे, मेरे को मेरे पैर अच्छे लगने लग गए, राइट? आई वॉज कंफर्टेबल विद माई आर्मपिट्स, सो आई थिंक दैट अकाउंट हेल्प्ड मी फॉल इन लव विद माई बॉडी the way I should be. I should respect my body, I should love it, I should cherish it, I should do whatever I want with it, right? But वो ये ना ज़माना है कि भाई they want to control you, they want to control you how you dress, and they do it with other women all the time. तो अब जैसे मेरा बर्थडे पास आ रहा है and it's like new beginning, new birth, everything. This is also a new birth that needs to go with me. This is also a part of me that I want to take with me, ठीक है? I'm not saying कि I'm going to start showing my body, or I'm not saying I'm going to start to not do it. I don't know, right? But what I'm saying is I am acknowledging कि हमारी जो body है वो हमारी है, and we love it the way it is, right? So what's wrong if we continue to do what our heart desires, right? Whether it's dressing up the way we want to, but it's for us, right? We love our body, we want to dress it up however we want to, okay? And then there are people like me, and there are others, they love being admired for their body, and everyone should be doing that. Everyone should love being admired for their body. यार तुम्हारी खुद की है, तो अगर तुम्हारे को कोई respectfully admire कर रहा है, I don't find any issues in that. Don't be, as long as you're not being cheap, as long as you're taking consent, as long as you
you're not being vulgar, as long as you are not, you know, shaming or whatever, as long as there is respect in how you view a person or how you compliment them or how you approach them, then I don't see any problem with that. I get admired a lot, you know, when I used to go clubbing या even बाहर and all that, मुझे कोई problem नहीं है, देख लो, it's okay, it's okay, देखने की चीज़ हूँ, ठीक है, तो देख लो, it's fine. You know, beauty is supposed to be admired, right? Not hidden, not controlled, not, you know, put it in a blanket and throw it away wala. No, it's not an object. Beauty, आपको अगर कोई देख के admire कर रहा है तो I appreciate it. But if you start being disrespectful, then you also will not get the same respect for me. Then I will not appreciate, right? तो ये वाली बात आ जाती है. People come up to me, compliment me, I talk to them बड़े अच्छे से. Clubs में भी जैसे guys approach me, it's okay, you know, I talk to them, I give them their time, you know. If they have respectfully approached me, I will be respectful to them. मैं कोई वो attitude नहीं दिखाने वाली या दिखाती हूँ कि भाई तूने ऐसे क्या क्यों, how dare you approach me, no, I do not do that, okay, no, I don't. तो मतलब ठीक है, they find so much courage to approach to you, right? They come up to you, at least तुम 2 मिनट तो अच्छे से बात कर ही सकते हो ना, उनको इतना तो टाइम तुमको नहीं करना बात, it's okay, just say whatever you are in your mind. If you're not interested, it's okay, just say thank you so much, you know, for coming up, but blah blah, whatever you want, or you want to talk, you talk, you don't want to, you don't want to, it is up to you, no problem, no problem. ये मेरा लड़कियों से भी मैसेज है, राइट, कि बी रिस्पेक्टफुल, वो भी तुम्हारे से रिस्पेक्टफुल रहेंगे, तुम भी उनसे रहोगे. आई नो अभी सदमे लगे हुए हैं, बहुत लगे हुए हैं, उन सदमों की वजह से काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो बट इट्स ओके. आई एम सेइंग कि अगर कोई तुम्हारी ब्यूटी अप्रिशिएट कर रहा है, लर्न टू अप्रिशिएट दैट. एंड अगर कोई अपनी ब्यूटी को एक्सप्लोर कर रहा है एंड शो कर रहा है, learn to respect that as well, please. Like I said, so this part of me is definitely going with me to my next new beginning, right? I'm gonna keep admiring my body as much as I can, as every day, every single day, you know. And I would recommend people start admiring their body as well. Be respectful. देखो यार, तुम भी अगर तुम जितनी रिस्पेक्ट लोगों को शो करोगे ना, तुम्हारे को भी लोग उतना रिस्पेक्ट करेंगे. तो मेरा लड़कियों से जैसे ये मैसेज है कि you know, when you want to dress up however you want to, it's okay, right? जैसे क्लब में तुमको जैसा करना है करो, तुमको अपने घर में, तुमको अपने इंस्टा पे, तुमको अपने सोशल मीडिया, whatever you want to do, you do, right? बट जो दूसरे लोग जैसे जहाँ पे उनके सेंटिमेंट्स हैं, जैसे कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप हो गया या ऑफिस हो गया, कुछ भी है जहाँ उनके थोड़ा अगर तुमको लगता है कि सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हो जाएंगे, सो आई वुड से उन प्लेसेस में थोड़ा ना करें अपने, थोड़ा जिस यू नो, लेट्स ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट. वो भी हमारे को जीना हराम हमारा बंद कर दें, आप भी हमारा जीना हराम बंद कर, उनका जीना हराम बंद कर दें, राइट? So I would also suggest like people ki admire, it's okay, there is no problem in admiring, just don't shame it, shame मत करो, गाली मत दो, ठीक है? कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी होती तो हम तुमसे पूछ लेते हैं ना. तुमको मजा आएगा हम तुमको कंट्रोल करें, हम तुमको आगे बोलें कि भाई नहीं, तुम अब आज से बिकिनी पहनोगे. लड़कों को आगे बोले कि नहीं लड़के, आज से तुम बिकिनी में. हाउ डेयर यू आर नॉट वेयरिंग बिकिनी. और मैं समझ रही हूँ क्या कह रही हूँ, ठीक है? तो ऐसे कंट्रोल करके कोई मतलब नहीं है, तो हमको भी जीने दो, आप भी जीने दो, ठीक है? हम भी रिस्पेक्टफुली रहेंगे, आप भी रिस्पेक्टफुली रहोगे, ठीक है? तो मेरे को तो भाई सही में आई लव यू नो बीइंग एडमायर्ड. आई एंजॉय इट, आई डोंट चेज इट, बिकॉज सबसे पहले मैंने ये अपने अंदर लेके आया है कि
जितना मैं अपने आप को लव करती हूँ, या जितना मैं अपने आप को एडमायर करूंगी, जितना मैं अपने आप को रेस्पेक्ट करूंगी ना, उतना ही इट विल कम फ्रॉम अदर्स एज वेल, राइट? सो आई नीड टू कीप ऑन डूइंग मोर एंड मोर, यू नो, loving it more and more, working on improving it more and more every single day. This is the hard work I do. This is the hard work I do. I look after my inner self, I look after my outer self, I look after my every need and everything. That's the hard work that I think people forget to do. Another quick thing before I go, like, just because somebody says ki unko, you know, they admire their body, they love showing it off, or, you know, you got it, flaunt it, yeah, exhibitionism, kuch bhi, right? Just because they say that doesn't mean ki wo they are open to doing that with everyone, ठीक है? Consent नाम की चीज होती है, ठीक है? It's up to them, basically choice, right? It comes down to choice. Who they want to do it with, how they want to do it, how much they want to do it, when they want to do it, with whom they want to do it, like, you know, where they want to do it. ये सब उनकी चॉइस है. तो जाके उनसे बॉदर मत करना कि, यू नो, डोंट गो एंड बॉदर पीपल एंड आस्क देम टू डू थिंग्स फॉर यू. दैट्स बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग. इफ दे वांट टू डू इट, दे विल डू इट ऑन देयर ओन. इफ दे डोंट वांट टू डू इट, दे वोंट डू इट, राइट? तो प्लीज़ आप ये जो अपने माइंड में चीज़ें कंफ्यूज कर लेते हैं ना, उनको करना बंद कर. चॉइस इज़ ए बर्थ राइट, ठीक है? आप ये चॉइस किसी से ले नहीं सकते जब आप उनको गंदी नज़रों से देखते हैं, या जब आप उनको जज करते हैं, या जब आप उनको टच करते हैं बिना उनकी इजाज़त के. आप उनसे उनकी चॉइस ले लेते हैं. जब आप उनको गालियाँ देते हैं, आप उनसे उनकी चॉइस ले लेते हैं. जब आप उनको गंदे गंदे लेबल्स देते हैं, आप उनसे उनकी चॉइस ले लेते हैं. जब आप उनको बुली करते हैं, आप उनसे उनकी चॉइस ले लेते हैं, ठीक है? आप उनको मारते हैं, कंट्रोल करते हैं, आप उनसे उनकी चॉइस ले लेते हैं. तो जैसे आपको आपकी चॉइस नहीं छोड़नी है, नहीं बिकिनियों में घूमना लड़कों को, ठीक है? तो वैसे ही आप लड़कियों को भी उनकी चॉइस के हिसाब से रहने दीजिए. जो लोग अपना रहना चाहते हैं, रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो, बस. दैट्स इट, राइट? डोंट अटैक पीपल, डोंट जज पीपल, डोंट गो टू पीपल एंड हरास देम टू डू थिंग्स फॉर यू, ठीक है? इट्स देयर चॉइस इफ दे वांट टू और नॉट, ठीक है? जस्ट लाइक मेरा वो अकाउंट होना वॉज माई चॉइस, अब वो मेरा अकाउंट ना होना इज ऑल्सो माई चॉइस. अब इस विस्तार व्हाटएवर में आना इज माई चॉइस, ठीक है? तो एवरीथिंग इज अ चॉइस. आप लोगों से लोगों की चॉइसेस ना लीजिए, कृपया करके. धन्यवाद. थैंक यू.